Hi all, welcome back. Hope you all are doing good. So, in previous video, we have studied about the concept of number system, like what is number system and how many types of numbers are there. So, as promised, today I will show you how to categorize the number in the groups so that we can easily study it and understand the concept of system. So, if you have any doubt about number system and how many types of number are there, so you can go and check my previous video in which I have briefly explained the each and every type of number. So let's start. So basically numbers are categorized mainly into two groups, real and imaginary. So as far we have discussed, there are varieties of real number we have, and the second type is imaginary number. So imaginary number is a very high advanced math concept, so you no need to worry about this for now. So we'll not cover this for now because it's a very high and advanced concept for maths, so you'll not need to study. So for now, we will go with the real numbers only. So basically real numbers are categorized again into two parts, rational and irrational. So as I told you, real number is a combination of all numbers, is a combination of rational plus irrational numbers. So rational number again is a number that can be represented in the form of p by q, यानी जो नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज रैशनल, एंड इरेशनल दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. जैसे रूट वैल्यूज जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, पाई की वैल्यू. देन अगेन rational number again categorized into three parts, like it's form a tree here. ये एक tree form कर देता है again branches wise. So below rational number again three numbers, whole number, natural number, integer. So whole number are those number which start from 0, it includes 0. Natural number are numbers that start from 1. So whole and natural all are positive number, while integers contain 0, negative number as well as positive number. If you want the more examples and more detail on this topic, you can follow my previous video. I have made it. Now again, natural number again is divided into various parts. Even numbers that can be divisible by 2, odd number that cannot be divisible by 2, prime numbers that has only two factors, either one, that has only two factors, one or themselves. Co-prime again they have a common factor between them, that is only one. And composite, the numbers which are not prime, like the number which have more than two factors, one themselves and any other factor. So the number which have more than two factor are composites. So this is basically a number system tree. So if you want to learn about the numbers and if you want to learn about the concept, then you have to just go through this tree, and automatically the number will go into your mind that okay, after this, after rational number, we have whole, natural, integer. So in natural number we have again a five kind, even, odd, prime, co-prime and composite. So this form a tree basically. So moving forward, as you can see on my screen, basically I told you numbers are divided into real and imaginary. So for imaginary is an advanced mathematic concept, so no need to study for now. So we'll focus on the real numbers. So as you can see, real numbers are rational, is a combination of rational plus irrational. So this is a pool of irrational and this is a pool of rational. So rational, integers, whole and natural. So in this you can see natural number, as I told you, starting from 1. So जो भी सारे नेचुरल नंबर हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो होल नंबर भी हो सकते हैं. ओके, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0. तो अगर नेचुरल नंबर के अगर 1 2 3 4, लेट्स सपोज 4, तो होल नंबर तो 0 से 0 को भी इंक्लूड करता है, तो वो होल भी होगा. देन और होल नंबर्स आर इंटीजर्स ऑल्सो. इंटीजर्स तो और एडवांस है कि नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस 0. सो सारे होल नंबर भी इंटीजर्स हो सकते हैं. नाउ अगेन इंटीजर्स
जितने भी इंटीजर्स हैं, चाहे नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल दैट इज जीरो, वो रैशनल हो सकते हैं, बिकॉज हर इंटीजर को हम रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो बट यहाँ पे टॉपिक को ना कॉम्प्लेक्स करते हुए आई जस्ट गिव यू अ सिंपल ट्रिक टू फाइंड आउट कि कौन क्या नंबर हो सकता है, बिकॉज एक थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट. सो सपोज मान लो ये एक पूल है, ये आपका घर है, लेट्स सपोज दिस इज योर हाउस. ओके. सो अगर आप अपने घर में किसी को बिना वजह कोई एंट्री नहीं देते, राइट. सो ये नंबर भी एंट्रीज नहीं देते अपने घर में. सो अगर आप बोलोगे कि रैशनल नंबर, हर रैशनल नंबर इंटीजर है, तो नहीं, क्योंकि अगर रैशनल नंबर मान लो 2/3, तो 2/3 का आंसर पॉइंट में आएगा. ओके. सो दैट इज नॉट अ इंटीजर, बिकॉज इंटीजर तो -2, -3, 1, 2, 3, लाइक माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इंटीजर्स पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकते. सिमिलरली अगर आप बोलोगे हर इंटीजर होल नंबर है, तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है, बाहर से जो अंदर आ रहा है वो चीज़ अलाउड नहीं है. इस डायग्राम में आप देखो, ऐसे ही हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, बिकॉज easy, क्योंकि जीरो इज अ होल नंबर बट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. सो यू कैन सी कि आप नंबर्स की ऐसे एंट्री अगर है तो दिस विल नॉट अलाउ, कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता. लेकिन रैशनल नंबर, हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, हर इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, हर होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकता. बट इसका अपोजिट सोचें, अब आप इसका अपोजिट सोचो तो आप लेकिन बाहर से अंदर से बाहर जा सकते हो, राइट. सो नेचुरल नंबर एक होल नंबर हो सकता है, बिकॉज सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं. ऐसे ही हर होल नंबर इंटीजर हो सकता है. होल नंबर क्या, 3, 3/1 कर दो वो रैशनल बन जाएगा. होल नंबर 99, 99/1 कर दो वो रैशनल बन जाएगा. सो इसी तरह बाहर से अगर मैं बोलूँगी आपको क्या एक रैशनल नंबर इंटीजर हो सकता है, तो आप ऐसे डायग्राम बना के देखोगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस हर रैशनल इंटीजर हो सकता है. एरो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ, दैट मीन्स एंट्री इज नॉट अलाउड. सो दिस इज फॉल्स, एवरी रैशनल नंबर कैन नॉट बी इंटीजर. बट आप तो बाहर जा सकते हो. सो अगर पूछेगा इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, सो इज एवरी इंटीजर, तो क्या हर एक इंटीजर जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से बनाना स्टार्ट करोगे, इज एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, तो ये पॉइंट किस तरफ कर रहा है, बाहर की तरफ. आप तो बाहर जा सकते हो. सो दिस इज ट्रू. सो दिस इज इजी ट्रिक टू आइडेंटिफाई कि बिना कंफ्यूज हुए कि क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर हो सकता है, हर इंटीजर होल नंबर हो सकता है या नहीं, या हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है. सो जब आप देखोगे कि आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस इस पर ट्राई करोगे या इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, फिर ये डायग्राम बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू कैन डू योर क्वेश्चंस ऑन योर ओन. सो ये एक बेसिकली सिंपल ट्रिक थी आपको बताने की कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा नंबर क्या हो सकता है या नहीं. ओके. सो तो सिंपल सी ट्रिक कि आपको ऐसे अगर एरो जा रहा है बाहर की तरफ, यानी नेचुरल नंबर रैशनल है या नहीं बाहर की तरफ, तो दैट वो हो सकता है, दिस इज अलाउड, यू कैन गो आउटसाइड, बट आप किसी को अंदर नहीं आने दोगे. तो अगर बोलेंगे रैशनल नंबर एक नेचुरल नंबर हो सकता है, तो रैशनल नंबर तो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, जैसे 2/3, वो एक नेचुरल नंबर कैसे हुआ, राइट. सो this is allowed but this is not allowed. I hope the concept is clear with you all. If you have still any doubts or any question in your mind, you can comment me in the comment section below. I will take all your doubts. So moving forward, अगर अभी भी आपको कोई confusion है, हम इसको क्वेश्चंस करके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख सकते हैं. सो हमारा डायग्राम क्या था, सबसे पहले हमारे नेचुरल आते हैं, फिर हमारे होल नंबर, देन इंटीजर्स, देन रैशनल्स, राइट, देन रैशनल. सो अब आप इन क्वेश्चन को देखो, आप देखो इजीली आप कर पाओगे. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी
नेचुरल, देखो एरो कहाँ जा रहा है, बस आपको ये देखना है। पहले क्या है, नेचुरल नंबर, तो स्टार्ट किससे करेंगे, नेचुरल नंबर से। कहाँ जाना है, होल नंबर पे। सो इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी किस तरफ पॉइंट कर रहा है ये, आउटसाइड। दैट मीन्स अब हम बाहर तो जा सकते हैं, दैट मीन्स दिस इज ट्रू, मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ यस, सो नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। कहाँ से स्टार्ट करना है, इंटीजर से। कहाँ पे जाएगा, होल नंबर। एवरी इंटीजर स्टार्ट विद दिस होल नंबर, अंदर की तरफ जा रहा है, मूविंग इनसाइड। क्या एवरी इंटीजर होल नंबर हो सकता है, बाहर से अंदर एंट्री अलाउड है, नो, दिस इज नॉट अलाउड, राइट। सो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ऐसे ही थर्ड वाला देखें, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, अगेन रैशनल नंबर से। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है, फिर से इसकी क्या बात है, अंदर से, सॉरी बाहर से अंदर। सो इज एंट्री इज अलाउड इनसाइड योर होम, नो। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सी, बिना किसी रट्टाबाजी करे, बिना कुछ करे, हमने नंबर चार्ट के हिसाब से देख लिया हाउ कैन वी कैटेगराइज एंड हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन इजिली। आप अगर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करोगे, आपको ये डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड इट विल बी ऑलवेज इन योर माइंड। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। अगर किसी को किसी भी बच्चे को किसी चैप्टर में या किसी भी क्वेश्चन में, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू आउट। प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, बिकॉज जब तक आप मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू विल नॉट क्लियर विद द कंसेप्ट। सिर्फ मैथ्स रटने से काम नहीं चलता, मैथ्स रटने के लिए नहीं होती। सो जस्ट गो विद द कंसेप्ट, understand the idea behind that, and you will able to do questions easily. And again, I'm telling you, if you have any doubts regarding any chapter, any question, please comment me. I will share the videos as soon as possible. So thank you so much for now. Bye bye.